Okay, let's start our today's session, students. This session is very important because today we are doing some practical work, right? So before that, I would like to tell you, as we all know, in previous session we have already learned about EV3 controller, right? EV3 कंट्रोलर के बारे में हम प्रीवियस सेशन पर पढ़ चुके हैं, इवन उसके बटन्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. तो इन शॉर्ट वे आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब यू अगेन. हमने कहा था कि अगर हम कोई भी लेगो माइंडस्टॉर्म के पार्ट्स के थ्रू, हमारे पास लेगो माइंडस्टॉर्म किट है, उसके पार्ट्स के थ्रू अगर कोई भी रोबोट हम डिजाइन करते हैं, तो उस रोबोट के माइंड और हार्ट, इट मींस ब्रेन और हार्ट की तरह काम करती है ये EV3 ब्रिक, जिसे हम इंटेलिजेंट ब्रिक भी कहते हैं. It is also known as intelligent brick, right? We have two blocks on this brick. इस brick के ऊपर हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक स्क्रीन टैब्स हैं, it means एक स्क्रीन डिस्प्ले है और कुछ बटन्स हैं, right? ये जो स्क्रीन डिस्प्ले है इसको आज हम डिस्कस करेंगे, बट इन प्रीवियस सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सम buttons in which we have one number button is called back button. one number button को हमने back button बताया था, और back button यूज होता है किसी भी प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, किसी भी टास्क को अंडू करने के लिए. अंडू मीन्स लास्ट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए. इफ आई वांट टू टर्न ऑफ द रोबोट, अगर मैं अपने रोबोट को टर्न ऑफ करना चाहती हूँ, देन आई कैन यूज दिस बैक बटन, राइट? And you can see the number 2 button is called center button. It will help us, ये हमें किस चीज में हेल्प करेगा? To select the options, to run the program and turn on the robot. It means अगर मैं अपने रोबोट को turn on, it means open करना चाहती हूँ, then I can use this center button. और अगर मैं किसी प्रोग्राम को रन करना चाहती हूँ, then I can click on this center button. And some are navigation buttons, left, right, down and up. If I want to move left, if I want to move right, if I want to move up, if I want to move down, then I can use these navigation buttons, right? ये हम already discuss कर चुके हैं. Even हमने ये भी discuss किया कि साथ के साथ इन दोनों चीजों के अलावा, display screen और buttons के अलावा, we have one USB port or Wi-Fi port. By the help of this port, we can connect this device to another device. Like if I want to connect this EV3 through laptop, then I can use one USB cable, and by the help of this port, I can do the same task, right? And the second one is a memory extension SD card reader. If I want to attach one memory card, so I can use this port. And I have two types of ports also. One are input ports and another one are output ports. If I want to use sensors, then I can use input ports. If I want to connect motors, then I can use output ports, right? These are the numerical ports 1, 2, 3 and 4, and these are the alphabetic ports A, B, C and D. ये आपने EV3 पर देखा होगा. कुछ फीचर्स हमने डिस्कस किए थे, और इवन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाउ टू ओपन दिस EV3 एंड हाउ टू शट डाउन दिस EV3. टू टर्न ऑन द EV3 ब्रिक, अगर मैं EV3 ब्रिक को ऑन करना चाहती हूँ, प्रेस द सेंटर बटन, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि हम क्या करेंगे, सेंटर बटन को प्रेस करके रखेंगे. आफ्टर यू प्रेस द बटन, the brick status light will turn red. जैसे ही आप एक बार उसको क्लिक करेंगे तो आपका सेंटर में लाइट शो होगा रेड कलर का, लेकिन जैसे ही आप उसको प्रेस करके रखेंगे तो वो रेड लाइट आफ्टर सम टाइम ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? तो जैसे ही ग्रीन लाइट में वो कन्वर्ट होगी, दैट मीन्स योर EV3 brick is on and it is ready to do work, right? If you want to switch off or if you want to shut down this EV3 brick, then you can press the back button, which is 1 number button, right? Until you see the shutdown screen. जब तक आप उस पर written form में नहीं दिखेंगे your EV3 shutting down, तब तक आप उस back button को press करके रखेंगे.
So I am showing you again, this is your center button and this one is your back button. It means आप इसको यहाँ से on कर सकते हैं, यहाँ से shut down कर सकते हैं. I hope it is clear. इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से स्क्रीन टैब्स के साथ काम किया जाता है. अगर हम बात करें डिस्प्ले स्क्रीन की, तो डिस्प्ले स्क्रीन पर वी हैव 4 टैब्स. फर्स्ट वन इज रीसेंट प्रोग्राम, another one is file navigation, third one is application, and fourth one is setting tab, right? So what is the role of recent programs? क्या task है recent program tab का? Recent program, the most recently run program will show here, right? Recent program क्या करता है, जो अभी तक करंटली रन किए हुए प्रोग्राम्स हैं उनको शो करेगा. लाइक अगर मेरे EV3 में लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट सेव्ड हैं, मे बी टर्न राइट का, लेफ्ट को टर्न करने का, स्ट्रेट मूव करने का, जंप करने का, वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोग्राम, राइट? बट अभी रिसेंटली मैंने 2 प्रोग्राम्स पर वर्क किया है, दैट इज टू मूव स्ट्रेट रोबोट एंड टर्न राइट. तो ये जो 2 करंट रनिंग प्रोग्राम्स हैं वो रीसेंट प्रोग्राम में शो होंगे यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर. मैम बच्चों देखिए, जो आपका फर्स्ट आपका ऑप्शन है दैट इज रीसेंट प्रोग्राम्स. इसमें आप स्क्रीन टैब पर जैसे ही आप अपनी EV3 ब्रिक ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, आपके सामने 4 टैब्स बने हुए आएंगे. फर्स्ट रीसेंट प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, सेकंड बोलते हैं फाइल नेविगेशन, थर्ड बोलते हैं हम एप्लीकेशन, और फोर्थ वन है हमारा सेटिंग, राइट? अब बात कर रहे हैं ये जो फर्स्ट आपका टैब है दैट इज रीसेंट प्रोग्राम. ये क्या काम करता है? लाइक आपके रोबोट में आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं थ्रू कोडिंग. ये आपको अभी शो नहीं, अभी आपके अगर ब्लैंक EV3 है तो आपको कोई प्रोग्राम नहीं विजिबल होगा. बट अगर आपने कोडिंग के थ्रू इसमें कुछ प्रोग्राम्स डाउनलोड किए हैं तो ये कुछ फाइल्स आपके सिस्टम में सेव हो जाएंगी, राइट? लेकिन ये आपको कौन से वाली फाइल्स शो करेगा यहाँ पर? जो रिसेंटली रन की गई हैं. अब इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ ताकि और बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे. आई एम जस्ट लाइक टू ओपन राइट नाउ लेगो डिजिटल डिजाइनर एंड आई एम गोइंग टू टेल यू इन अ वेरी इजी मैनर. आई होप आप इसको समझ पाएंगे. देखिए, आपने इस पर वर्क किया है, यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस प्लेटफॉर्म. अब यहाँ पर हमने कुछ प्रोग्राम्स आपको शो हो रहे हैं. EV3 सिंपल डिजाइन, लेगो फ्रेम, ग्रैब एंड लिफ्ट, एक EV3 और है इस तरीके का, डोर डिजाइन एंड मिनी रोबो. ये कुछ आपने फाइल्स क्रिएट की हुई है. इट मींस आपने कुछ प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर किए थे लेगो डिजिटल डिजाइनर पर. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने ये 6 प्रोजेक्ट्स ही डिजाइन किए होंगे सिर्फ. इट इज नॉट नेसेसरी. आपने और भी प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए होंगे जो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेम. आप यहाँ पर नेम प्रोवाइड करेंगे एंड देन यू कैन क्लिक ऑन ओपन. तो दैट मीन्स आपके जितने भी प्रोग्राम बने हुए हैं वो आपकी मेमोरी में है, बट आपने रिसेंटली इन प्रोग्राम्स पर वर्क किया है, इसीलिए ये रिसेंट ओपन्ड प्रोग्राम में शो हो रहा है. इट मीन्स अभी कुछ दिनों में, हाल फिलहाल में ही आपने इन प्रोजेक्ट्स को ओपन किया है, इनको रन किया है, इनको प्ले किया है, इनको ओपन किया है, इन पर काम किया है, राइट? तो इसीलिए ये आपके एक फोल्डर में शो हो रहे हैं ये 6 प्रोजेक्ट्स. तो सिमिलरली आपके EV3 ब्रिक पर यहाँ पर वो प्रोग्राम शो होंगे जो आपने रिसेंटली प्ले किए होंगे. लाइक अगर मेरे EV3 रोबोट में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें मैंने रोबोट से बहुत सारे टास्क प्ले कराए हैं, लेकिन रिसेंटली मैंने 2 प्रोग्राम रन किए थे कि किस तरीके से मेरा रोबोट स्ट्रेट मूव करेगा, किस तरीके से राइट टर्न लेगा. तो वो दोनों प्रोग्राम के नेम यानी कि राइट प्रोग्राम और स्ट्रेट मूव प्रोग्राम आपको यहाँ पर शो होगा, बट वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से नेम से उनको सेव किया है. So this is the use of recent program. My second point is file navigation, right? जो second folder है वो file navigation है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके सारे ही फाइल्स आपको शो करेगा. इट मींस आपने जितने भी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स इसके अंदर डाउनलोड किए हैं
वो कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस। आगे वाली क्लासेस में हम ये डिस्कस करेंगे। तो आपने किस तरीके से उसको डाउनलोड किया है सारी फाइल्स, और जो भी फाइल्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे आपको फाइल नेविगेशन में शो होंगे। लाइक हो सकता है मैंने इसके अंदर 7 प्रोजेक्ट बनाए हूं, अभी आपका EV3 बिल्कुल न्यू फ्रेश है, और हो सकता है आप स्टार्टिंग में 7 प्रोजेक्ट सेव करें, और हर प्रोजेक्ट को सेव करें इस फॉर्मेट में: P1 प्रोजेक्ट, P2 प्रोजेक्ट, P3 प्रोजेक्ट, P4 प्रोजेक्ट, P5 प्रोजेक्ट, P6 प्रोजेक्ट, P7 प्रोजेक्ट, राइट। तो वो सारे फाइल नेम आपको यहाँ पर शो होंगे, एंड देन यू कैन एक्सेस इट बाय जस्ट क्लिक ऑन दैट, बाय जस्ट क्लिक ऑन सेंटर बटन। आप उसको सेलेक्ट करके सेंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो रन हो जाएगा, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी इज एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, और ये हेल्प करता है आपको कुछ जनरल एप्लीकेशंस को शो करता है। जैसे कि अगर आपको देखना है पोर्ट, जैसे अभी हमने बात की थी, यहाँ पर पोर्ट हमारे होते हैं इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट। अगर वही सेम पोर्ट आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, देन यू कैन यूज दिस एप्लीकेशन टैब, राइट। आप इसके अंदर पोर्ट व्यू पर चले जाएंगे तो आप उस टास्क को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके के मोटर कंट्रोल्स, किस तरीके से मोटर्स पर कंट्रोल किया जाता है, IR कंट्रोल, सेंसर कंट्रोल कह रहे हैं जिन्हें, और ब्रिक प्रोग्राम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। सेटिंग टैब, लास्ट वन इज सेटिंग टैब। आप बहुत अवेयर हैं, जैसे आप अपने फोन में भी बहुत सारी सेटिंग्स चेंज करते हैं। लाइक आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वाईफाई का नेम चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाकर के, राइट। आप क्या कर सकते हैं, आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने सिस्टम की। तो सिमिलरली कुछ सेटिंग्स यहाँ पर भी अवेलेबल है, जैसे कि ब्रिक को रीनेम करना, राइट। तो ये सब कहाँ पर एप्लीकेबल है, सेटिंग्स में एप्लीकेबल है। वाईफाई से अपने सिस्टम को कनेक्ट करना, अपनी EV3 को कनेक्ट करना, तो ये सारे ऑप्शंस कहाँ पर अवेलेबल है, सेटिंग टैब में अवेलेबल है। अब इन पर कैसे काम किया जाता है वो सब हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट पर एक नेम अवेलेबल है, दैट इज EV3। अगर आपने अपने EV3 को ओपन किया हुआ है तो आप भी देख सकते हैं कि टॉप पर एक नेम अवेलेबल होगा EV3, दैट इज ब्रिक नेम। इट मींस आपके EV3 कंट्रोलर का नेम है, जिसके थ्रू आप इसको दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी करते हैं, तो क्या होता है कि एक पेयर अपना सेकंड डिवाइस फाइंड आउट करता है उसके नेम से। तो सिमिलरली जब आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो ये आपके नेम को मांगेगा, जो यहाँ पर मेंशन है EV3। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे, राइट। एंड द लास्ट ऑप्शन इज बैटरी पावर। जैसे आपके फोन में होता है कि आपका फोन कितना चार्ज है, कितना डिस्चार्ज है, एक स्मॉल रेक्टेंगल में आपका फिल्ड और अनफिल्ड एरिया आपको बताता है कि कितना बैटरी आपका चार्ज है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको बैटरी शो की जाती है, जहां पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका EV3 कितना चार्ज है और कितना अनचार्ज है, अगर आपने उसको अपने चार्जर से कनेक्ट किया है, चार्जर से उसको चार्ज किया है, राइट। सो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं चार्ज। कनेक्टिविटी हम सीखेंगे बाद में जब हम प्रोग्रामिंग पर आ जाएंगे, बट बिफोर दैट वी विल लर्न हाउ टू रीनेम दिस ब्रिक। तो किस तरीके से हम ब्रिक को रीनेम करते हैं, फर्स्टली आई विल टेल यू द स्टेप्स एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू वन वीडियो, ओके। सो व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप्स आर सिंपल, जस्ट गो ऑन सेटिंग टैब। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू ओपन योर EV3 ब्रिक, and after that you have to go on setting tab, and then you have to click on brick name option। brick name option आपको select करना है, and then you will receive some alphabets। by the help of these alphabets you can type your name also, you can type any another name also which you want to give your give to your EV3 brick, right। इट मीन्स आप उन अल्फाबेट्स के थ्रू अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई और नाम भी लिख सकते हैं जो भी आप EV3 ब्रिक को देना चाहते हैं, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन राइट बटन, राइट। एक राइट एरो का आपको वहां पर ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो रीनेम हो जाएगा। आई विल शो यू वन वीडियो।
First of all, you will tell me, voice is clear to you? Yes, ma'am. Okay. So watch very carefully. What's going on? It's Mr. Nino with Miss Neil's Lego. Hey everybody, what's going on? It's Mr. Nino with Miss Neil's Lego Robotics. This video is going to just give you a little bit of information that you might not know, but let me get straight to it. देखिए, this is the setting tab. जैसे ही आप ओपन करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ नेविगेशन बटन्स. इट मींस राइट क्लिक करके आपका जब भी आप बाय डिफॉल्ट ऑन करते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ होता है फर्स्ट ऑप्शन पर, रीसेंट प्रोग्राम पर. बट यू जस्ट वांट टू गो ऑन सेटिंग टैब, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा 2-3 टाइम्स. आप थर्ड टाइम पर सेटिंग टैब पर आ जाएंगे एंड देन जस्ट गो ऑन ब्रिक नेम. हियर इट इज ब्रिक नेम. आपको डाउन बटन का यूज करके ब्रिक नेम के पास आना है एंड देन क्लिक ऑन सेंटर बटन. इसके बाद आप सेंटर बटन पर क्लिक करेंगे. I'm going to show you a couple of different bricks. This one here, if you are on the fourth tab and want the wrench, there is a brick name option here, where if I press that, I'm able to. Yes, now you can see ब्रिक नेम में आपको इसका, इनकी ब्रिक का नेम है BDD, राइट? बट यू वांट टू रीनेम इट. हो सकता है आपके ब्रिक का नेम है बिकॉज इट इज अ फ्रेश ब्रिक EV3, बट यू वांट टू रिमूव द EV3 and just you want to write any another name, right? Like Robo. If you want to write Robo, ROBO, so you can use these alphabets. आप ये alphabets use कर सकते हैं. Like you have to press ROBO. आप राइट और लेफ्ट बटन्स का यूज करेंगे. अगर यहाँ पर ऑलरेडी नेम मेंशन है then you have to erase by the help of this arrow button, right? This is बैकस्पेस बटन. आप इससे क्या कर सकते हैं, डेटा को इरेज कर सकते हैं. एंड देन यू हैव टू राइट ROBO, राइट? And if you want to give the space, then you can use this space bar. And after that, if you want to write numerical data, then just click on 1 2 3 and then you have to write 1 2, right? It is completely up to you कि आप कौन सा नेम देना चाहते हैं, क्या नेम देना चाहते हैं, कितना यूनिक नेम आप अपनी ब्रिक का रखना चाहते हैं, right? And after that, just click on this tick arrow button. आप इस टिक एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नेम है वो रीनेम हो जाएगा. Yes, तो वो आपको यहाँ पर शो होगा, करेक्ट? So this is the way you can rename your brick.